Mr. Arun Agarwal, CMD IBIS Consulting Private Limited, to enlighten the participants on how to decide between pursuing higher education, taking the entrepreneurial plunge and getting employed in the IT industry. And he'll also help us understand the importance of branding oneself with social media. Hello. I am feeling great. The reason is, yeah, I am with you, so I am feeling great, but there is another reason. Second time in my life, I am in a fantastic situation. I had thought about sharing some thoughts with you, and we have some great people here. We always talk about the same things, so they have taken away my speech and put it to their speech. So here is a guy with no thoughts. I don't know what to say, I don't know what to share with you. So let's do something. Nirupam said, let's innovate for India. Yeah, let's innovate for ourselves. Survive कर ले, 10 मिनट आपके साथ है, तो थोड़ा survive कर ले. क्या करें? So how many people here are in the final years? Cool. So what do you plan to do next? First option, you want to go for higher studies. You want to go for higher studies? How many? Show of hands, please. Some people want to become entrepreneurs because entrepreneurs is such a fantastic thing. We have been hearing, we will be hearing, so many things will happen. So you want to become entrepreneur? What is an entrepreneur? अरे यार ये entrepreneur is something everybody keeps talking about. ये होता क्या है? Entrepreneurship में आप क्या करते हो? Instead of taking a job with someone, you create a company and you start offering jobs to people. Excellent. You're earning money, you are the boss of your company, CMDs and all that. And you become an entrepreneur. So there are some things you need to have in an entrepreneur mindset. Some people don't have the mindset. It's okay. I don't have the mindset. I do something else. That is the third option. What is the third option? Tell me. If you don't want to start your own company and hire people, you want to do what? Get hired. I will take up a job with someone. अरे क्या छोटा यार बात कर रहे हैं आप NASSCOM में standing and you saying get hired. Sir, बेइज्जती नहीं है इसमें. It is perfectly alright. Some people get embarrassed. Oh, you think I will go work for some company? What will people say and all? मैं आपको बोलूँगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. ये आप मत सोचिए. आप एक जॉब ले सकते हैं और आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं. एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? रिस्क टेकर, एग्रेसिव, प्रोएक्टिव. तो हम जॉब में करेंगे. I'll join a company, big, small, whatever, and I will be very active there. I will start new options. I will look around. What does the entrepreneur do? He thinks कि मैं क्या कर सकता हूँ? What is the new product I can make? कुछ तो नया करना है ना? Everybody fine with Hindi? Yes, sir. Because थोड़ा friendly लगता है. We will of course speak in English because Queen told us that you must speak in English to look smart. मैंने सूट पहना है, साला मैं तो साहब बन गया. तो इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है, पर कभी-कभी हिंदी में. अंग्रेज चले गए, इंग्लिश छोड़ गए. और हम लोग उसको कैरी कर रहे हैं सूट पहन के. हमारी राइट जेब में इंग्लिश, बाएं जेब में हिंदी. राइट जेब में हिंदी नहीं रहता है. चलिए ओके. सो हम लोग अगर जॉब करते हैं ना तो वी कैन स्टिल बी एंटरप्रेन्योर्स. हम लोग वहां पे बोलेंगे कि सर ये काम हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते हैं. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी कस्टमर फोकस्ड. उसको अभी उन्होंने कहा कमल ने कि यू शुड हैव लव फॉर एंड रिस्पेक्ट फॉर योर कस्टमर्स. तो एम्प्लॉय को नहीं होना चाहिए क्या? इफ आई वर्क इन टाटा स्टील और आई वर्क इन XYZ कंपनी, तो अभी तो आपको कस्टमर को लव करना पड़ेगा. और योर कंपनी विल नॉट ग्रो, एंड इफ योर कंपनी डज नॉट ग्रो, देन हाउ विल यू ग्रो? तो आप भी ग्रो कर सकते हैं. तो निरुपम की स्लाइड में एक और इंटरेस्टिंग चीज था. इफ एवरीबॉडी इज राइट, लेट्स गो लेफ्ट. तो आज हम लोग एक काम करते हैं. इफ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स. हाउ कैन आई गेट अ गुड जॉब? हाउ कैन आई बी अ ग्रेट प्लेयर इन अ जॉब? करते हैं? Some of you want to take up jobs? थोड़ा सीखते हैं कैसे जॉब मिलता है. बहुत सिंपल है भाई. कैसे मिलता है जॉब?
बोलिए, एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? किसी का सीवी लेंगे, भाई तेरा बढ़िया सीवी है यार, लेट्स कॉपी। तो उसने लिखा आई वांट टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हमको लिजर्ड से भी डर लगता है। तो सीवी में हम लिखेंगे आई एम एन एग्रेसिव पर्सन, आई एम अ टीम प्लेयर, आई लव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ओह माय गॉड। तो कॉपी पेस्ट, प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिए। योर सीवी इज योर सीवी, योर पर्सनैलिटी मस्ट शाइन आउट। और जो लोग जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं जस्ट आफ्टर द कॉलेज, दे थिंक कि हमको बहुत हाई फाई वर्ड्स लिखने चाहिए। So we get CVs and our leaders here are also getting CVs. Those words which some of us don't understand. तो हमारा इंटरव्यू होता है, हम उसको बोलते हैं भाई ये आपने लिखा हुआ है, you are a great team player. So can you tell me what is a good team player? I don't know sir. तो ये आपने क्यों लिखा है सर? वो CV में लिखा हुआ था ना, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया CV है, इसी को डाल दो। तो मैंने नाम, जेंडर वगैरह तो चेंज किया, लेकिन ये सर फर्स्ट पैराग्राफ बहुत सेक्सी लग रहा था, तो डाल दिया सर, मतलब को नहीं पता है। डोंट डू इट, वी हेट इट। मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्लंट रहूंगा, इट इज नॉट नेसेसरी बट आई विल स्टिल टेल दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा। सो हरियाणा पीपल का रेपुटेशन है कि बड़े अक्खड़ होते हैं, ब्लंट होता है। तो मैं भी आपको कुछ बातें बोलूंगा ब्लंट, आई विल हिट यू, आई विल इंसल्ट यू, एंड डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि आपके फायदे के लिए। तो जब आप सीवी देंगे ना किसी को, तो that CV in the top side you must say what exactly you want to do, और थोड़ा रिसर्च कीजिए what company you are applying for. You will be shocked. There are people whom I interview and I say which company are you applying for? He says sir वो तो ख्याल नहीं है। सर आपका कंपनी का क्या नाम है? Some people apply to us by email, so they would send an email to HR@firstcompany.com, HR@secondcompany.in, HR@thirdcompany.blah blah blah, सब BCC या CCC। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये हर कंपनी में अप्लाई कर रहा है, he has no interest, he doesn't even know which company is applying for, what job is applying for, why should I choose you? Shall I choose you? No, because I have got options. India है ना, so there are a lot of people and there are fewer jobs. Is that correct? आपको फाइट करना है। You have to get into some company by fighting your way in, and you want to use all the tools at your disposal, and CV is your strong tool. तो आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल CV लिखिए, एक पैरा लिखिए आपका पर्सनैलिटी क्या है, and be normal. From a first year student, I am not thinking कि वो पाई का 7 डिजिट तक वैल्यू बता देगा। इंडिया से अगर एक मार्स यान गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मार्स यान? चंद्रयान, मार्स यान, मंगलयान। तो इंडिया से मंगलयान गया, कितनी देर में पहुंचा? So we don't want to know all this. We just want to know that you are an honest person, you will love your job, you will love your company, and you will do your job very well. That's all I want to know. तो ये जो रेज्यूमे लिखते हैं हम लोग, सीवी लिखते हैं, उसके अंदर में आप अपना फैक्ट्स को स्टेट कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, और आपको शायद इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, राइट? नहीं भी आ सकता है, नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर। आपको नहीं आया, इज दिस द लास्ट कंपनी इन द वर्ल्ड? देयर आर मेनी मोर कंपनीज, तो दूसरे में अप्लाई करेंगे, विल कीप ऑन अप्लाई। सो आपने सीवी डाल दिया, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेज? सपोज यू आर शॉर्टलिस्टेड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आपका जॉब क्या है? क्लाइंट डेवलपमेंट और समथिंग समथिंग। आप जा रहे हो शॉर्ट्स पहन के, कान में बाली लगा के, हाय हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? पर आपको एक सीरियस प्रोफेशनल काम करना है, तो ऑलवेज बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यू। इज इट अ सीरियस थिंग? इट इज गोइंग टू गिव यू अ जॉब, योर लाइफ विल बिकम समथिंग सीरियस आफ्टर दैट। उसको आप सीरियसली नहीं लोगे, तो आप जब जॉब के लिए जाते हो ना, बी सीरियस, बी प्रॉपर्ली अटायर्ड। थोड़ा ओवर अटायर होने से नुकसान नहीं है, बट अगर आप जा रहे हो फैशन डिजाइनर के लिए, तो आप सूट पहन के मत जाओ। यहाँ पे अगर मैं आया हुआ हूँ, आई एम द CMD ऑफ सम कंपनी, आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज माय कंपनी है, तो आई एम अ NASSCOM ईस्टर्न रीजनल प्रोडक्ट काउंसिल मेंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, सो आई एम वेयरिंग अ सूट बिकॉज़ दैट इज व्हाट सूट्स मी है। लेकिन रात को पब में गए सूट पहन के, अरे 2 बियर देना, बोलेगा भाई किधर आ गया, दूध की बोतल इधर दे दे।
मिलती है, बियर लेने के लिए कहा गया, राइट? सो बी प्रॉपर्ली अटायर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर एवरीथिंग. आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, आप बोलिए सर आई डोंट नो, आप बोलिए सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव मिस्ड इट ऑन. सो जस्ट गिव अ क्विक प्रॉपर फ्रैंक आंसर. हाउएवर, जैसे अभी I think somebody mentioned here कि you have a CV and you don't even know what you have learned, or somebody says सर ये तो 3 साल पहले पढ़ाया गया था, जॉब तो आज कर रहे हैं. Would you like to know the thing, or you expect me to train you up for what you should be knowing or already doing? You don't want, right? और चाहते हैं आप सर भूल गए तो क्या हो गया, 3 साल भूल गए, अभी फिर सिखा दो, सिखाने का भी पैसा दे देना. So the biggest mistake which people do is to not think like an employer. आप एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप हमारे जमाई हो या हमारी बहू हो, इफ यू आर अ गर्ल, लेकिन आप हमारे बहू हो. आइए जॉब लेना है, कौन सा जॉब लेंगे, बैठिए बैठिए प्लीज, अरे इनको एक जॉब देना. How many of you honestly expect this behavior from your employer? हमको आंसर मत दीजिए, because it will be very embarrassing to raise a hand in this place. अपने मन में आप सोचो कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, if you are, I would not say a beggar, but you are going to get something, the company is sitting there nice and pretty, आपको एक जॉब दे रही है जिसमें आपका कैरियर बनेगा, आप उसको सीरियसली लो, वेल बिहेव. और इस इंटरव्यू में आपको कुछ बेसिक टेक्निकल सवाल हम लोग पूछेंगे. दैट इज बेसिकली वी वांट टू फिल्टर यू आउट, वी वांट टू गेट रिड ऑफ इडियट्स. जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ ब्लंट लैंग्वेज यूज करूंगा, आई ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम स्लैंग, बट हम इडियट्स नहीं चाहते अपनी कंपनी में. आप चाहते हो अपने घर में, हम भी नहीं चाहते. तो आप अगर वेल बिहेव्ड है, रिस्पॉन्सिबल, आपको कुछ नहीं आता, अभी गूगल का जमाना है, आप गूगल कर लेना, देख के बता देना कैसे होता है. सो व्हाट यू नीड एक्चुअली इज एनालिसिस पावर. मैंने अगर आपको, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. आई रिसेंटली टुक एन इंटरव्यू एंड व्हाट वी डिड, डेटाबेस हमने बोला कि आप क्वेरी करके निकालो, वी डोंट वांट टू गेट इनटू लैंग्वेज एंड ऑल. उसमें सारे स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज का नाम दिया हुआ है और एज दिया हुआ है, एंड वी आस्क्ड देम टू पिक अप ऑल मेल स्टूडेंट्स अबव 30, एंड पीपल हैव एक्चुअली रिटन द कमांड्स टू डू दैट, बट आई नेवर मेंशन द जेंडर. So you should be able to pinpoint saying sir इसमें जेंडर नहीं दिया हुआ, how can I pick up the mails? इतना एनालिसिस तो आप करेंगे, नहीं तो आप जॉब कैसे करेंगे भैया और बहना, कैसे करेंगे? तो आपको अपना ईयर्स एंड आईज ओपन रखना है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है, और आपको जॉब मिल जाएगा. वंस अगेन इतना इजी नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिक्स है. ये आप नहीं कर रहे हो तो आगे नहीं वाला. ठीक है. Another interesting thing I wanted to tell you that this is NASSCOM Tech Conclave. I believe most of you are from IT background or interested in IT. Is that right? How many people are interested in IT jobs? What else? Fashion? Anything will do. How many people are interested in any job will do? Fantastic. So this man is truthful. झूठ नहीं बोलता है. बहुत सारे और लोग हैं जो एनी जॉब विल डू बट वो झूठ बोल रहे हैं, वो हाथ नहीं उठा रहे. तो आप डिसाइड करो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, एंड यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कहाँ का डायलॉग है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. पॉपुलर मूवी खान साहब, 3 इडियट्स. तो 3 इडियट्स ने बोला कि आप थिंक आउटसाइड द बॉक्स. आपको आउटसाइड द बॉक्स थिंक करना है. बॉक्स कहाँ है? वेयर इज द बॉक्स? बॉक्स लेके आओ. Is there? तो प्रॉब्लम क्या है? आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? You want to say something? बॉक्स दिमाग में होता है. कितना बड़ा? बहुत छोटा बॉक्स होता है. Actually you are right. Box is not a physical thing; it's a virtual thing. How much time? 5 minutes. I have to wrap up, unfortunately, but you can talk to me because I am a very funny guy. So think outside the box is fantastic. But you have to know the box. तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो 11th 12th नहीं पास करना चाहते, जो कॉलेज नहीं जाना चाहते. सर मेरे को थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना है. आमिर सर ने बोला है, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ. आई रियली रिस्पेक्ट यू.
मैं फैशन में जाना चाहता हूँ, आई रियली रिस्पेक्ट यू, तो आप फैशन को फॉलो करो और एक जॉब भी कर लो, फैशन की कंपनी में जॉब कर लो, पढ़ लो कॉलेज, फैशन का काम करेंगे। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो फोटोग्राफी से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो यू स्टार्ट अ ब्लॉग। So you heard about a blog? Blog is basically a website जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं कुछ bits of photographs and serially is like a diary. So you create a very good blog on wildlife photography और उसको आप monetize करो, वहाँ से पैसा कमाओ। So definitely follow your heart, go after your passion. लेकिन अगर आप रुपया नहीं कमाएंगे तो बहुत जल्दी आपको वो फोटोग्राफ्स को पानी में घोल के खाना पड़ेगा या जंगल में पत्ते खाने पड़ेंगे। आप चाहते हो? नहीं। तो पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसा सबसे जरूरी नहीं है। पैसे के लिए हम अपना सोल नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन हम पैसा भी कमाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी ब्लंट। तो आप भी पैसा कमाना चाहते हो? कौन कौन पैसा नहीं कमाना चाहते हैं? सैड, इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री। यहाँ पे शिवालिवस लोग और दिलदार लोग नहीं रहते, सबको पैसा चाहिए। तो आपको पैसा मिलेगा, आपको अपना पैशन भी फॉलो करने के लिए मिलेगा, बट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। और मैं आपको अभी क्या बोला था, आप मेरे क्या नहीं हो? तो आप मेरे भी जवाई नहीं हो, आप लाइफ के भी जवाई नहीं हो। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको एक जॉब करनी है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, सबसे पहले आप बनेंगे, प्रोबेशन पे जाएंगे, ट्रेनी बनेंगे, जूनियर एम्प्लॉय बनेंगे, वहां से आप जाके CMD माइक लेके सूट पहन के साला मैं तो साहब बन गया, आप यहाँ खड़े होंगे और कुछ और मुर्गाज, तो कुछ और लोगों को पकड़ के कहीं से रजिस्ट्रेशन करा के ला के बैठा के लेक्चर देना चाहते हो, तो वो जो ग्रोथ होगी ना, दैट ग्रोथ विल कम फ्रॉम योर हार्ड वर्क। सम पीपल आर जमाइज और बहूज, कांग्रेचुलेशंस, कभी मुझे भी फॉर्मूला बताइएगा, बट वी ग्रो विद आवर हार्ड वर्क, यू विल ग्रो विद योर हार्ड वर्क। So be yourself, follow your passion, work hard, and be a winner. You can be a winner. So I like to, because there's something very interesting. We should talk about social media, Facebook. Everybody on Facebook? तो फेसबुक में क्या होता है, whenever you post, now you are senior people, थोड़ा आप बड़े हो गए हो, you will be looking for a job very soon. So we wanted to actually alert you. This is more like a warning shot. कि आप जब फेसबुक करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जबरदस्त ड्रिंक करते हैं पार्क में पड़े हुए इधर उधर, और उसका फोटो बहुत प्राउडली पोस्ट करते हैं on your Facebook profiles. Some people do all sorts of funny things, and you please interpret the word funny here. It is not only related to comedy. So you do all sorts of. Somebody smiles? Nobody smiles. आप करते हो funny things? नहीं करते? अच्छा, very good, congrats. तो अगर आप वो funny things कर रहे हो ना, please don't go tell the world कि आप funny things कर रहे हो, because what will happen is in today's world, which is very well connected, यहाँ पे लोग बहुत aggressive हैं और आप aggressive हो तो आपके employers और भी aggressive हैं. What we will do is whenever you will apply in our company, we will research you. Primarily on the social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, and all other places. So if you have done some funny things and you posted there, we can profile you. We can get an idea of what kind of person you are. अभी मैं आपको एक 10 सेकंड का एक्सरसाइज देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 सेकंड का एक्सरसाइज है. Who is not on Facebook? Everybody is on Facebook. Fantastic. So you think about the last few posts you have made on Facebook. Don't have to tell anybody. Just think. Close your eyes if required. जिससे कि मेरा चेहरा नहीं देखना पड़े. वो जो 10 पोस्ट्स या फोटोज आपने पोस्ट करी हैं, what does it tell me about you? Does it tell me you are a serious person? Does it tell me you are very concerned about the social things? Does it tell me you are a BJP or AAP supporter and you will follow them to the jungle or whatever? Does it tell me that you are careless about your life? You don't care? Last 10 posts. एक बार आप सोचिए, 10 सेकंड में आपको देता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके,
So break your plans, वापस आ जाइए और अब आप सोचिए, is this the impression you want the world to have of you? If yes, congratulations. If no, please don't do it anymore. Some moments are private, you will post them in private, discuss them in private. लेकिन आपका जो social media है, you cannot erase internet. Nobody can. If you are actually serious about, getting a job, starting a company, doing whatever, please be very serious about Facebook and other social media things. And this gives me the opportunity to tell you just one more thing. And after that, of course, I will very seriously wrap up. I'm sorry about it. Some people think that programming or IT jobs means coding. हमको जाके उधर प्रोग्रामिंग करना है, C language में, PHP language में, .NET में. So IT jobs are not only about coding. There are so many more jobs. I'm not sure if somebody is talking about this. Somebody is, yes. Deven is talking about this. So there is a huge number of other job potential which you can have. So as I said, you can follow your passion. Coding, maths. I don't like it. I hate maths. I hate maths. How many? I'm not one who hate maths, but so if you hate maths, it's okay. If you hate economics, it's okay. But do you love something? Find that thing. Follow it. It's okay. And there are tons of other jobs also available for you. They will be covering that area. So it's no point putting me into my situation where my speech was, stolen. I was looking like deer in the headlights. अभी क्या करने का? इतने लोगों से share करना है, क्या करूँ? So we innovated. Please go innovate and please be a winner. Oh, very important. Email IDs there. Sorry, keeps coming back to me. As I was saying, your impression which you give out on Facebook and all. We receive emails from people saying, "Sir, I'm looking for a job." And my ID is crazy girl 46. Sexy killa @gmail.com. भैया हम सेक्सी किल्ला का क्या करेंगे? What is your ID? I am Arun. My ID is arun@tvsindia.com. I am not funny guy. Hot stud and all that, So please avoid these ideas. We have had enough. You have had enough. अभी serious होने का time है. Serious हो जाओ और please